Good morning, everybody. Today we are going to start a new chapter that is a networking. Networking एक बहुत important chapter है. This chapter contains you are going to get in class 10 exam, in class 12 exam, in any competitive exam, and in any point of view, because networking is a basic criteria like coding what we have today. So let us start introduction to computer network. So first of all, what is a network? नेटवर्क है क्या? तो नेटवर्क जब हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं तो वो हो जाता है नेटवर्क. अब कंप्यूटर के वर्ल्ड में जब एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर तीसरा कंप्यूटर या तो बहुत सारा कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड रहे तो वो हो जाता है नेटवर्क. जब हम एक कॉल से दूसरा कॉल कर रहे हैं, दूसरा कॉल से तीसरा कॉल कर रहे हैं तो वो भी हो जाता है नेटवर्क. मीन्स द सिंपलेस्ट वर्ड इज देयर. नेटवर्क इज a connection of autonomous devices, many devices, in order to communicate. So what is a network? Network is a connection of many devices in order to communicate. वहीं पर नीड्स ऑफ नेटवर्क क्यों हुआ? यहीं पर हम लोग का आ गया कम्युनिकेशन. जहां पर एक रिसोर्स है, बहुत सारा यूजर्स है, जैसे एक प्रिंटर है, 10 गो कंप्यूटर है. अब क्या है कि 10 गो कंप्यूटर से कहीं से भी हमको प्रिंट करना है तो वो सब चीज हो सकता है. तो सिंपल नीड ऑफ नेटवर्क्स is known as to communicate. So what are the advantages of network? The advantages of network, we can share the file, like file sharing. जैसे एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं, ईमेल यूज कर रहे हैं. ओके. सेकंड, हार्डवेयर शेयरिंग. अब हार्डवेयर शेयरिंग क्या, जैसे हम लोग को बताए थे, अभी बताए, जैसे मेरे पास 4 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है. अब इसमें हमको ये चीज क्या कर दिए, हम प्रिंटर को शेयर कर दिए. तो ये क्या हुआ, ये शेयर पॉसिबल तभी होगा जब ये आपस में सब लोग कनेक्टेड रहेगा. व्हेन ऑल द थिंग्स विल बी connected, all the devices will be connected. Okay, so what are the disadvantages of network? First of all, cyber crime. अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भी मेरा पैसा है यहाँ से वहां निकाल सकता है, कोई भी हमको ब्लैकमेल कर सकता है. सेकंड, वायरसेस और वर्म्स. वायरस आ सकता है, करप्टेड प्रोग्राम आ सकता है जिसमें मेरा पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है. Now let us move to the next topic, that is the terminologies which are basic in a network. मतलब क्या क्या चीज मुझे नेटवर्क के लिए चाहिए, इंटरनेट चलाने के लिए, नेटवर्क एक दूसरे से जोड़ने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए. So let us see the next part. Now students, move to the next part, that is the components of computer network. Computer network का components क्या क्या है? So the first part is the server. Server is what? Server is a computer or any place in the cloud where all the resources are present. Means what? Server, it is a place in a cloud which responds to the request of client. ये बहुत सारा सर्वर है, जैसे वेब सर्वर है, ठीक है, सिंपल. Many types of servers are there, which one we will deal in the chapter number 2 of the networking. Okay, now first of all we are dealing with the basic concept that what is a server. Server एक place है, एक कंप्यूटर है, एक place और या कंप्यूटर in a cloud. Cloud का मतलब एक इंटरनेट में, where which responds to the request of the client. Client request कर रहा है, जिस I am the client. If I am requesting that Google, then Google server is responding to me. Okay, so what is the client? Which makes request to
the server. So what is NIC? Network Interface Card. Network Interface Card. So what is Network Interface Card? ये इंटरनल मॉडेम भी इसको हम लोग बोलते हैं, जिससे मेरा इंटरनेट कनेक्ट होता है. So server तो we have dealt this part. कम्युनिकेशन चैनल. अब कम्युनिकेशन चैनल जो है, मतलब किस चैनल से मेरा डेटा जा रहा है. दो तरीके का चैनल होता है. वन दैट इज गाइडेड, दैट इज बाय वायर्स, एंड अनदर दैट इज अनगाइडेड, दैट इज बाय वायरलेस. तो वायर्स में जो है वो मेरा तीन तरीके का वायर्स मेन आता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर. ये क्या है? ये मेरा एक ऐसा केबल है जिसमें मेरा 8 cables रहता है, means 4 pair with different color. It is basically used in LAN communication, local area communication. That is means एक कंप्यूटर लैब में अगर मुझे 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, या तो तुम्हारा मॉडेम है, मॉडेम से टीवी को कनेक्ट करना है, तो एक तुम्हारा एक घर के अंदर में या तो एक लैब के अंदर में अगर 10-15 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है एक रूम के अंदर, स्पेशली वी यूज द ट्विस्टेड पेयर. नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल. अब कोएक्सियल केबल क्या है? जो हम लोग डिश टीवी में यूज करते हैं, इस टाइप कॉपर केबलिंग इस कॉर्नर, इसका जो है ये कोएक्सियल केबल है. ये स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, मैन में यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में. और वहीं पर थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक. दिस इज द वेरी फास्टेस्ट एंड वेरी कॉस्टली केबल. इट is very speed, where all the bristles type cables are there, and the speed with light though it goes. It is mainly used in WAN 5G connection. जितना भी हम लोग जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर स्ट्रीम हम लोग यूज कर रहे हैं, वो फाइबर ऑप्टिक केबल से ही यूज कर रहे हैं. वहीं पर अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया में कौन कौन आ रहा है? अनगाइडेड और वायरलेस एरिया में बहुत सारा चीज है, जैसे ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, उसके बाद क्या है? ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, एंड आफ्टर दैट इट इज दैट वी कैन से दैट वाईफाई is there, then radio waves is there, then satellite is there, microwave is there. These are the unguided media. अब ये ब्लूटूथ है क्या? ब्लूटूथ तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये शॉर्ट कम्युनिकेशन वेव्स है, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, जिसमें हम लोग क्या शॉर्ट डिस्टेंस मतलब 10 मीटर डिस्टेंस में फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, वेयर इज वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी? दिस वन वी आर यूजिंग फॉर एज ए एयर टू कम्युनिकेट. तो उसमें वाईफाई में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? वाईफाई में रेडियो वेव्स, सैटेलाइट और माइक्रोवेव्स. रेडियो वेव्स क्या है? ये ओमनी डायरेक्शनल है. ओमनी डायरेक्शनल मीन्स व्हाट? वी आर यूजिंग द सेलुलर वेव्स, जैसे हम लोग मोबाइल फोन में यूज करते हैं, तो वो ओमनी डायरेक्शनल है. वो हम लोग का सेलुलर फोन्स में हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. वहीं पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर हम लोग का टावर हम लोग पहुंच नहीं सकता. जैसे मान लो कि कोई एक रिमोट एरिया, एक बहुत अमेजन का जंगल अगर मान लेते हैं, और या तो कोई डिजर्ट मान लेते हैं, या तो ऐसा प्लेस जहां पर टावर इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ये सब टावर इंस्टॉल्ड ही नहीं, तो सिग्नल कहां से आएगा? तो सिग्नल सैटेलाइट से आता है. उसके बाद माइक्रोवेव्स. तो माइक्रोवेव्स आर व्हाट? माइक्रोवेव्स आर द कम्युनिकेशन वेव्स व्हिच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे एक छत के ऊपर एक एंटीना लगा है, यहाँ पर भी छत के ऊपर एक एंटीना लगा है, यानी अलाइन किए एकदम स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड जाता है. दैट ऑल आर नोन एज माइक्रोवेव्स. तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूटूथ है क्या, रेडियो वेव्स है क्या, सैटेलाइट है क्या, माइक्रोवेव्स है क्या? आएगा भी तो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकता है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, now students move towards the types of network. तो हम लोग का टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत सारा कैटेगरी का होता है, मगर बेसिक हम लोग का स्कूल करिकुलम में जो अगर हम लोग देखने जाए तो मेन 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क वी कैन फाइंड. तो फर्स्ट इज लैन. लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. एरिया नेटवर्क. इट इज confined to a building or a room or buildings
in 100 or less than 1 kilometer range in any organization। मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क कहां पर फॉर्म होता है, जहां पर हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहला बात कि हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग एक रूम है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 2 रूम है और ये 2 रूम में 10-10 करके कंप्यूटर है और ये 10-10 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो दैट इज नॉन एज लैन। अगर हम लोग का बिल्डिंग नंबर 2 है और इसमें भी 10-10 कंप्यूटर है और ये इस बिल्डिंग से कनेक्टेड है, इंटरनेट से नहीं, फिर से बोल रहे हैं, इस बिल्डिंग से कनेक्टेड है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है या तो 200 मीटर है, मगर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, मतलब एक कॉलेज के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, दैट इज ऑल्सो नोन एज लैन। सिंपल सा बात है, जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाता है, लैन। अब बात आ रहा है मैन। मैन का क्या कंसेप्ट है? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका कंसेप्ट अब लगभग लगभग खत्म होने वाला है। जब हम लोग डिश टीवी यूज करते थे और अभी भी यूज बहुत जगह हो रहा है, जो सेट टॉप बॉक्स में यूज हो रहा है, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स में यूज हो रहा मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक जो लोकेलिटी का जो है केबल ऑपरेटर, वो हम लोग का सॉरी, केबल ऑपरेटर जो है वो हम लोग का डिश टीवी लगा दे रहा है और वो पर्टिकुलर सिटी में एक ही तरह का डिश टीवी चल रहा है। तो दैट, जब एक पर्टिकुलर सिटी में एक ही तरह का नेटवर्क चले तो दैट कम्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन अ सिटी, इन अ सिटी। वहीं पर वैन का कॉन्सेप्ट क्या आ गया? अगर हम लोग एक सिटी से बाहर निकल गए, जैसे हम बोले कि अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए तो हम अपना सिटी से बाहर हो गए, हम लोग सिटी, दूसरा सिटी या तो वर्ल्ड में कहीं पर भी कनेक्टेड हो जाते हैं, तो दैट कम्स इन द वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आउटसाइड ऑफ अ सिटी और एनी प्लेस इन वर्ल्ड, अगर कहीं पर भी हम लोग का अगर कनेक्टिविटी कर लेते हैं तो दैट कम्स इन द वैन। वहीं पर पैन, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क कैसे फॉर्म हो रहा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर्म हो रहा है जैसे बिटवीन टू फोन्स, between two phones using you can say that share it, या तो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी हो रहा है, ब्लूटूथ हेडसेट, हेडसेट जैसे ब्लूटूथ हेडसेट हम लोग का अपना फोन में लगा रहे हैं, वो भी पर्सनल एरिया कनेक्शन है। अगर हम लोग वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा रहे हैं अपना लैपटॉप में या तो कंप्यूटर में, वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मतलब जब एक पर्सनल डिवाइस के साथ एक पर्सनल डिवाइस कनेक्टेड होता है तो वो हम लोग का पर्सनल एरिया नेटवर्क रहता है। ये क्वेश्चन एक हम लोग का केस स्टडी में आएगा। नेटवर्किंग से एक 5 मार्क्स का केस स्टडी आता है क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड कंप्यूटर साइंस में, जिसमें क्या हो जाता है कि ये केस स्टडी रहता है जिसमें से पूछा जाता है कि कौन सा टाइप का नेटवर्क फॉर्म हुआ जब 2 बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड होता है, या तो तुम्हारा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना हेड ऑफिस जो दूसरा सिटी में है वो कनेक्टेड होता है। तो हम लोग केस स्टडी सॉल्व करेंगे आफ्टर एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, so this is the types of network. After this, let us move to the topology part. Now students, move towards a very important topic, topology. Topology part, you are getting questions in many, as I have said, in government service examination, in school based curriculum, in class 10, class 12, especially in class 12. Topology comes in an examination in informatics practices subject. This topology comes with 2 marks question, okay, in especially in the case studies. तो सब पहले समझते हैं कि कोर्स टोपोलॉजी है क्या। तो टोपोलॉजी इज व्हाट? तो टोपोलॉजी इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मेनी कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। बहुत सारा कंप्यूटर जब एक रूम में या तो एक बिल्डिंग में मुझे कनेक्ट करना है एक पर्टिकुलर वे में,
तो उसको बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। एक अरेंजमेंट, जिस सीधा सीधी बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क इन अ बिल्डिंग और इन अ रूम। तो बहुत तरीके का टोपोलॉजी होता है, तो सबसे बेसिक टोपोलॉजी जो है, सबसे पहला बस टोपोलॉजी। सो व्हाई इट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी? बिकॉज यू जस्ट सी द फिगर। तो बस टोपोलॉजी में क्या है कि एक नेटवर्क केबल है जो नेटवर्क केबल मेन बेस केबल है, ठीक है, और इसी में मेरा इंटरनेट जा रहा है और इससे मेरा कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, कंप्यूटर नंबर 4 कनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या, जब एक बेस केबल से सब कनेक्टेड रहे तो इसको बोलते हैं लीनियर टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। इसको हम लोग लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज लीनियर टोपोलॉजी, तो कंफ्यूज मत होना कि लीनियर टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज बस टोपोलॉजी। तो इसका कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, देखो हम लोग यहाँ पर जो है बहुत शॉर्ट केबल लगा है, मतलब हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन द मेन एंड दिस इज वेरी मच शॉर्ट। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि शॉर्ट लेंथ केबल वी आर यूजिंग, शॉर्ट लेंथ केबल यूजिंग, तो वायरिंग में कम खर्च आएगा। इजी टू एक्सटेंड मतलब क्या, मुझे एक और यहाँ पर एक कंप्यूटर लगाना है, तो हम लोग जैसे यहाँ पर एक हम लोग सॉकेट बनाएंगे और एक यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इजी टू एक्सटेंड। डिसएडवांटेज क्या है, अब डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ से यहाँ तक का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो अगर काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा केबल को मुझे चेक करना पड़ेगा, तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा पॉइंट में खराब है, पूरा केबल को ही चेक करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई फॉल्ट डिटेक्शन इज नॉट इजी। सेकंड, अगर ये बैकबोन केबल नेटवर्क खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे टर्मिनेटर्स, ये सबको टर्मिनेटर बोला जा रहा है। ये काम क्या करता है, जब मेरा नेटवर्क का सिग्नल इधर जाता है और इधर जाता है तो एक्स्ट्रा जो सिग्नल्स हो जाता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा सिग्नल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यही टर्मिनेटर्स का काम है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज द स्टार टोपोलॉजी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। ये बहुत पॉपुलर टोपोलॉजी और बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, बिकॉज 90% ऑफ द नेटवर्क्स फॉलो दिस टोपोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी? The topology in which all the nodes here stands for all the devices. It can be printer, it can be computer, it can be phone, any device which is connected in a network is known as node. So the topology in which all the nodes are connected to a central node or server is called star topology. So what is the figure for that? The figure for that is, the first of all, one server will be there, that is known as central node, and from the server all the computers will be connected, all the devices will be कनेक्टेड। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन बहुत इजी है। जैसे अगर ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, the computer is not working, then we will know that this wire is problem and this wire we will change or we will look for this computer, ये कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। बाकी सब कंप्यूटर चल रहा है, ये कंप्यूटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या, इस तार में प्रॉब्लम है। अगर कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब सर्वर में प्रॉब्लम है। तो फॉल्ट डिटेक्शन बहुत इजी है। सेकंड, इफ वन नोड फेल्स देन फुल नेटवर्क इज नॉट डाउन। अगर एक नोड फेल हो जाता है तो ये दूसरा जो नोड लगा हुआ है इसमें, उससे कोई फर्क उसमें नहीं डालता है। डिसएडवांटेज क्या है, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। अगर ये सेंट्रल नोड सर्वर फेल कर गया तो कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लॉन्ग लेंथ केबल, अब ये कंप्यूटर जो है वो 10 मीटर का दूरी में है, ये 20 मीटर का दूरी में है, 50 मीटर का दूरी में है, कितना लंबा लंबा केबल मुझे लगा, तो दैट इज व्हाई क्या है, ये कॉस्ट ज्यादा गिर जा रहा है। मगर क्योंकि यहाँ पर जो है ये फॉल्ट डिटेक्शन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, और नेटवर्क सबका इंडिपेंडेंट जाता है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ये चीज पॉपुलर हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट टोपोलॉजी इज द रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है, when all the adjacent nodes are connected to each other in a circular ring। जैसे कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 से कनेक्टेड है, कंप्यूटर नंबर 2 कंप्यूटर नंबर 3 से कनेक्टेड है, कंप्यूटर नंबर 3 कंप्यूटर नंबर 4 से कनेक्टेड है, कंप्यूटर नंबर 4 कंप्यूटर नंबर 1 से कनेक्टेड है। तो इस टाइप का टोपोलॉजी को हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, शॉर्ट लेंथ केबल है, क्योंकि ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी बनता है उसमें छोटा छोटा डिस्टेंस में काम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक भी नेटवर्क नोड फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसको डेटा सेंड करता है और ये फिर फॉरवर्ड करता है। अगर यहाँ पर बीच में कोई भी नोड खराब हो जाता है तो फॉरवर्ड करने वाला ही नहीं रहेगा। जब फॉरवर्ड करने वाला नहीं रहेगा तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द रेस्ट टू टोपोलॉजी, दैट इज द मेश टोपोलॉजी एंड फुल्ली कनेक्टेड
topology. Now let us move to the next three topologies, that is the tree topology, mesh topology and fully connected topology. तो ट्री टोपोलॉजी क्या है? द ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार एंड बस. जब स्टार बस से ये कनेक्टेड हो जाए, स्टार भी रहे बस भी रहे, इस तरह का टोपोलॉजी को हम लोग ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट इज द मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी में क्या बोला जा रहा है कि अगर इसको इस तक डेटा पहुंचाना है, मान लेते हैं कि ये नेटवर्क तार खराब हो गया, तो ये अल्टरनेट पाथ देगा इसको यहां से पहुंचाने के लिए. मतलब ये 3 नंबर कंप्यूटर को भेजेगा, 3 नंबर फिर 2 नंबर कंप्यूटर को भेज देगा. जब कोई टोपोलॉजी अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करे दूसरा नोड को पहुंचाने में, तो उस तरह का टोपोलॉजी को हम लोग मेश टोपोलॉजी बोलते हैं. वहीं पर फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी, when all the nodes are connected to all the devices, means all the another nodes like computer number 1 2 3 4. See, computer number 1 is connected to 3, computer number 1 is connected to 2 and computer number 1 is connected to 4. वैसे ही सब कंप्यूटर्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है. तो ये हम लोग का हो गया टोपोलॉजी खत्म. ये टोपोलॉजी में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं आता है, बट इफ यू वांट टू गो थ्रू डीपली then you can move towards the सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता ही है, बट इट इज नॉट कमिंग इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सिर्फ कंसेप्ट चाहिए कि ये टोपोलॉजी का क्या है. सो दैट इज व्हाई वी हैव गिवन द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दिस टोपोलॉजी. नाउ लेट अस मूव टू द नेटवर्किंग डिवाइसेस. Now let us students move to the networking devices. So what are networking devices? Networking devices are the devices which are used for the networking purpose. तो what are networking devices? सबसे बहुत सारा ये networking device जो है, इससे भी एक दो questions, especially 2 marks questions in informatics practices you will get in case study questions, and in computer science also you will get, and in competitive exam also this type of questions are frequently there. First device is modem. Modem is what? It is a networking device which stands for modulator and demodulator. इसका काम क्या है? इसका काम है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और फिर डिजिटल से एनालॉग में. इसलिए इसमें लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा. मींस व्हाट? इफ यू हैव अ फोन एंड इफ आई हैव टाइप्ड गूगल, देन गूगल इज व्हाट? इट इज इन डिजिटल फॉर्म. But when we search, we click on search button, then a signals goes in analog form, एक waves form में जाता है और फिर वो एनालॉग फॉर्म डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता है. तो ये करता कौन है? ये फोन के अंदर में एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं मॉडेम. ये फोन के बाहर भी होता है. इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल मॉडेम इज ऑल्सो देयर. जैसे हम लोग जियो फाइबर का यूज करते हैं तो वो है एक्सटर्नल मॉडेम, जो हम लोग फोन के बाहर है, जिससे हम लोग इंटरनेट जो है सिग्नल भेजते हैं और लेते हैं, तो वो भी हम लोग का क्या है? मॉडेम. नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच. सो व्हाट इज स्विच? Switch is a networking device which is used to distribute networks into sub networks and send the data to intended node. अब स्विच रहता कैसे है? स्विच एक ऐसा तरह का डिवाइस है जो हम लोग का क्या रहता है? ऐसे टाइप का रहेगा जिसमें पोर्ट्स रहेगा, ऐसे टाइप का. और ये क्या? इस पोर्ट से सब कंप्यूटर सब कनेक्टेड रहेगा. मतलब ये क्या? एक मेन मान लेते हैं, एक नेटवर्क आया. अब इस मेन नेटवर्क से ये नेटवर्क क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर एक, और हर एक नोड में अलग अलग टाइप का नेटवर्क गया. तो ये कौन भेजता है? इसको बोलते हैं स्विच. ये हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, जो फैन का ऑन ऑफ करते हैं स्विच, ये सब स्विच नहीं, वो स्विच अलग है. एंड दिस इज अ नेटवर्किंग स्विच, इट इज अनदर. इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द मेन नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क्स एंड सेंड द डेटा टू इंटेंडेड नोड. इंटेंडेड नोड मतलब जिस नोड में डेटा जाना है उसी नोड में डेटा जाएगा, बाकी सब नोड में डेटा नहीं जाएगा. नेक्स्ट इज हब. हब क्या है? हब स्विच का ही जुड़वा भाई है. मतलब देखने में हब यही काम करता है, मगर क्या है? काम का तरीका इसका अलग है. इट इज यूज्ड टू सेंड द डेटा टू ब्रॉडकास्ट मोड. ब्रॉडकास्ट मोड का मतलब क्या है? ये जो नेटवर्क डेटा आता है, ये नेटवर्क डेटा सबके पास चल जाता है, वो अलग अलग करके भेजता नहीं है. स्विच क्या करता है? अलग अलग करके भेज रहा है, इसलिए वो क्या हुआ? तुम्हारा इंटेंडेड नोड. मगर हब क्या है? ब्रॉडकास्ट मोड में भेजते हैं, इसलिए वो एक ही बार में नेटवर्क डेटा को भेज दिया. Next is gateway. So what are gateway? Gateway is the entry and exit point of a network which connect dissimilar types of network. जैसे हम लोग एक जियो फाइबर का यूज किए, जियो फाइबर, उसमें हम नेटवर्क भेजे और वो नेटवर्क क्या किया? मेरा लैन में कनेक्ट कर दिया.
तो जब कोई डिवाइस मेरा गेट ओपन करता है जिसके थ्रू मेरा डेटा एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में जा पाया, तो वो गेट को हम लोग बोलते हैं गेटवे. इट इज अ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द राउटर. Okay, so let us move to the next part. Now let us student move to the next part, that is the router. So what is router? जैसे हम लोग एक कॉल किए और कॉल जो है वो कॉल जो रिसीव करने वाला वो कोलकाता में, और पर्टिकुलरली कोलकाता में जाकर ही कॉल लग जाता है. ठीक है, जैसे हम मेल भेजे, मेरे मेल आईडी से तुम्हारा मेल आईडी में, तुम्हारा मेल आईडी में ही डेटा जाकर सेंड हो गया. एक व्हाट्सएप किए, तुम्हारे व्हाट्सएप में ही जाकर गया. तो कोई तो एक ऐसा है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या है, जिसके पास तो सबका एड्रेस है और जिसको हम भेज रहे हैं वो पर्टिकुलरली एड्रेस तक पहुंचा दे रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज द राउटर. राउटर व्हाट? इट इज अ डिवाइस which is used to send the data to its destination through best possible path. Through best possible path. ये क्या एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को मेरा डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है थ्रू बेस्ट पॉसिबल पाथ. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिज. व्हाट इज ब्रिज? इट इज अ डिवाइस which connects similar networks. Similar networks. So what is a repeater? The repeater is a device which regenerates the weak signals. It is a device which regenerates the weak signals and send it again. रिपीटर क्या काम करता है? जैसे एक डिवाइस है और एक डिवाइस से सिग्नल निकला, बहुत हाई एम्पलीट्यूड का निकला, और धीरे धीरे क्या होता है, सिग्नल लो होते जाता है. जब सिग्नल लो होते जाता है तो हम लोग एक कैप्चर करते हैं कि किस तार से भेजे. मान लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल से भेजे, तो ट्विस्टेड पेयर केबल का लेंथ होता है 100 मीटर. 100 मीटर के बाद उसका सिग्नल डी ग्रोथ होने लगता है. तो 100 मीटर के बाद ही तब हम क्या करेंगे, एक रिपीटर लगाएंगे. रिपीटर क्या करेगा, फिर से वीक सिग्नल को कैप्चर करेगा और फिर से रीजनरेट करके भेज देगा. दिस इज द वर्क ऑफ रिपीटर. सो हियर आवर networking devices and the chapter 1 ends. Now let us move to the chapter number 2. Now students, let us move to the next part of the chapter, that is the introduction to network, internet and web. So it is the question arises that is www internet? No, www is not internet. www is a part of internet. Like see, internet. The internet is a collection of web services like www, email, database. And बहुत बहुत बड़ा जो है, अगर हम लोग बहुत का कुछ भी अगर सर्विसेज इंटरनेट में अगर हम लोग रन करते हैं, कुछ भी ईमेल दे रहे हैं, व्हाट्सएप सेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब इंटरनेट का पार्ट है. मगर ये जो www है, ये क्या है, ये इंटरनेट का एक पार्ट. तो व्हाट इज www? www इज अ वर्ल्ड वाइड वेब and is a collection of web pages and websites. जितना भी वेब पेज एंड वेबसाइट का कलेक्शन है वो सब www के अंदर आता है. तो www इन्वेंट कौन किया था? www was introduced by Tim Berners-Lee in 1989 and he was also the developer of HTML, hypertext markup language, जिससे हम लोग का वेब पेज सब डिजाइन रहता है. Now let us move to the next part, that is the terminologies of web or internet. Now let us move to the next topic, that is internet terminologies. Internet terminologies का मतलब क्या है कि internet related terms. तो सब तो फर्स्ट पहला टर्म क्या है कि वेब सर्वर. ये क्या है? इट इज द कंप्यूटर विच इंक्लूड्स ऑल द वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस. एक ऐसा कंप्यूटर इंटरनेट में जिसमें सब वेबसाइट और वेब पेज को रखा जाता है, वो हम लोग का वेब सर्वर कहलाता है. तब सर्वर क्या है?
तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें वेबसाइट्स, वेब पेजेस, डेटाबेसेस और बहुत सारा चीज रखा जा सकता है. सो इट इज ऑफ मेनी टाइप्स like web server, comma email server, comma file server. पहला बात तो सर्वर होता क्या है. सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो मेरा क्लाइंट का रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करे. ठीक है. अब यहाँ पर बात आ रहा है कि सर्वर बहुत तरीके का होता है. जैसे पहले सबसे पहला अभी हम लोग डील किए वेब सर्वर जो हम लोग का वेबसाइट्स और वेब पेजेस को रखता है. वैसे ही ईमेल सर्वर जो जितना सब ईमेल्स को रखता है. वैसे ही फाइल सर्वर जो जितना सब फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जितना हो रहा है वो सब फाइल्स को रखता है. तो ये सर्वर का बहुत सारा कैटेगरी होता है. अब यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ सबसे पहला चीज हम लोग ओपन करते हैं एक वेब ब्राउजर. तो वेब ब्राउजर होता क्या है इसके बाद हम लोग डील करेंगे. वो होता है वेबसाइट्स. तो वेबसाइट्स होता क्या है. तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट पेजेस. वेबसाइट क्या है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट पेजेस. इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट पेजेस. ठीक है. या तो वेब पेजेस वी कैन से दैट वेब पेजेस. जैसे हम लोग फेसबुक ओपन किए तो फेसबुक का जो पहला पेज उसको क्या बोलते हैं होम पेज. तो वो एक एक पेज जैसे फ्रेंड्स का एक पेज हुआ, कमेंट्स का एक पेज हुआ, हर एक का अलग अलग पेज जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है एक एक करके वेब पेज कहलाता है. तो वेबसाइट जो है वो दो तरीके का बांटा जाता है. व्हाट इज टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स. दैट इज द स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट. स्टैटिक वेब पेज भी बोला जा सकता है इसको, डायनेमिक वेब पेज भी बोला जा सकता है. तो दो तरीके का पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज. वेब पेज भी इसमें कंसेप्ट में आता है, वेबसाइट्स भी इसमें कंसेप्ट में आता है. वेब पेजेस में और वेबसाइट्स में यही सब चीजें स्टैटिक का और डायनेमिक का मतलब ये है कि स्टैटिक जो है वो क्या है द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट्स व्हिच डजंट चेंजेस. द contents of websites whose the contents of websites which doesn't changes frequently, which doesn't change frequently like school websites जिसमें क्या हो जाता है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर उसमें चेंज नहीं करे, उसको फोटो नहीं चेंज करे, वो सब चीज नहीं आता. वही सब डायनेमिक वेबसाइट्स या डायनेमिक वेब पेजेस द कंटेंट्स ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस which changes frequently. जैसे शेयर मार्केट जो एकदम फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है. ठीक है. एक एक सेकंड के बाद तुम्हारा देखना कि शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. तो वो सब क्या हो जा रहा है. एग्जांपल क्या है डायनेमिक वेबसाइट्स या वेब पेजेस में. यहाँ पर जो स्टैटिक वेबसाइट या वेब पेज दोनों ही एग्जाम में आए तो सेम डेफिनेशन होगा यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग का सिंपल HTML से प्रोग्रामिंग तो बना हुआ रहता है, मतलब वेब पेज और या तो वेबसाइट को बनाया जाता है. वैसे ही डायनेमिक वेबसाइट है इसमें HTML तो रहता ही है मगर उसके साथ साथ और भी जैसे जावास्क्रिप्ट रहता है. ठीक है. या और तुम्हारा PHP रहता है. ऐसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसमें लगा हुआ रहता है जिससे ये कंटेंट्स क्या हो जाता है चेंज होते रहता है. Now let us move to the next topic. That is web browser. Web browser होता क्या है. अभी हम लोग जो डील किए वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स में ये वेब ब्राउजर क्या है. तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर. इट इज अ सॉफ्टवेयर which is used to open internet pages जिसको हम लोग वेब पेज भी बोल रहे हैं. वेब पेज जैसे एग्जांपल क्या क्या है क्रोम, एज,
फायरफॉक्स, जिसमें से क्रोम और एज जो है, ये क्रोम जो है वो फ्रीवेयर है, फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, और एज जो है वो हम लोग का क्या है, प्रोप्राइटरी है, क्योंकि वो हम लोग का किसके साथ आता है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ आता है, वो फ्रीली नहीं आता है। अब यहाँ पर आ रहा है यूआरएल। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर, अब इसका काम क्या है? इट इज द यूनिक एड्रेस ऑफ एनी रिसोर्स ओवर इंटरनेट। इट इज द यूनिक एड्रेस, यूनिक एड्रेस of any resource over इंटरनेट। ठीक है, इसमें दो तरीके का यूआरएल माना जाता है, एक स्टैटिक यूआरएल, सॉरी, वन इज एब्सोल्यूट यूआरएल एंड वन इज डायनेमिक यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल एंड वन इज डायनेमिक यूआरएल। डायनेमिक यूआरएल। अब सबसे पहला चीज यूआरएल है क्या? तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि सीबीएसई का एक वेबसाइट में अगर हम लोग जाते हैं https www.cbse.nic.in, तो ये क्या हो गया, ये मेरा यूआरएल हो गया सीबीएसई का, जिसमें ये पार्ट क्या है, बहुत बार आता है कि यूआरएल का पार्ट्स क्या है, तो इस पार्ट को बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। इस पार्ट को बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन, सीबीएसई, सीबीएसई को बोलते हैं डोमेन नेम, सीबीएसई तक www.cbse। ये पार्ट को बोलते हैं सब डोमेन। सब डोमेन मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, डॉट इन, डॉट इन का मतलब इंडिया। वहीं पर अगर यहाँ पर आ जाता डॉट यूके, इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम। वहीं पर आ जाता डॉट ओआरजी मतलब ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर आ जाता डॉट कॉम मतलब कॉमर्शियल या तो कंपनी। तो ये होता है सब डोमेन। ठीक है, अब इसके बाद होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल इसी को बोलते हैं जब कोई भी चीज का पूरा एड्रेस मिलता है मुझे, तो वो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। वहीं पर रिलेटिव यूआरएल क्या है? जब हम लोग सिर्फ यूआरएल के एक पार्ट को यूज करते हैं, जैसे एचटीएमएल में बहुत जगह अगर जैसे हम लोग इमेज को अगर इंसर्ट करते हैं एक वेब पेज में, तो मेरा ये कोडिंग होता है img src इक्वल्स टू मान लेते हैं p1.jpg। तो ये जो p1.jpg है, ये सिर्फ इमेज का पार्ट को डिफाइन कर रहा है, एड्रेस को डिफाइन नहीं कर रहा है। जब सिर्फ एक पार्ट, एक एड्रेस का सिर्फ पहला पार्ट सिर्फ फाइल का नाम और उसका टाइप को डिफाइन करे, तो वो हो जाता है रिलेटिव यूआरएल। सॉरी, हियर आई हैव गिवन डायनेमिक, रिलेटिव, रिलेटिव यूआरएल। एंड अगर जो पूरा एड्रेस को डिफाइन करे वो हो गया एब्सोल्यूट यूआरएल। सो हियर वन मोर ऑप्शन इज देयर, दैट इज द वेब होस्टिंग, and after that the email and the protocols used. So now student, let us move to the web browser settings. वेब ब्राउजर में बहुत सारा सेटिंग रहता है, जैसे नंबर 1 होता है कुकीज। कुकीज क्या होता है? अब मान लो कि हम लोग एक फेसबुक लॉग इन किए या तो अपना ईमेल लॉग इन किए, अब वहां पर क्या हम लोग लॉग आउट करना भूल गए, तो होता क्या है, वो जब लॉग आउट करना भूल जाते हैं तब वो यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है, वो यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग का एक जगह पर सेव होकर रह जाता है अपना वेब ब्राउजर में, जिसको बोलते हैं कुकीज। तो कुकीज आर व्हाट? कुकीज आर टेम्पोरेरी फाइल्स, आर टेम्पोरेरी फाइल्स which are created when we surf internet. When we surf internet, it can include what it can include? Username, passwords, histories, etc. ठीक है, वहीं पर एड-ऑन्स और एक्सटेंशंस क्या है? ये सब एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है जो हम लोग का वेब ब्राउजर का फंक्शनलिटी को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग कोई गाना क्लिक कर रहे हैं तो गाना वेब ब्राउजर में नहीं बज रहा है, तो इसमें क्या है, या तो कोई वीडियो क्लिक करें तो वेब ब्राउजर में नहीं खुल रहा है, या तो कोई पीडीएफ खोल रहे हैं तो वेब ब्राउजर में नहीं खुल रहा है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर मांग रहा है। तो वो क्या हो जाता है, तो अलग वो जो सॉफ्टवेयर जो हम वेब ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं उसका फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए,
that is all the add-ons and extensions. The additional software which increases the functionality of a web browser, जैसे जावा प्लगइन्स, पीडीएफ व्यूअर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेरा वेब ब्राउजर का जो एक तो सॉफ्टवेयर है, जो अगर इंस्टॉल हो जाए तो ये हम लोग का वेब ब्राउजर में ही खुल जाएगा, अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगा। तो द नेक्स्ट पार्ट इज द वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है? जब हम लोग मान लेते हैं हम लोग एक वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, HTML हम लोग सीखे हैं, वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, वेब पेज डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप हो गया, अब उसको हमको इंटरनेट में रखना है ताकि क्या सब लोग देख पाए। तो वेब ब्राउजर या वेब पेजेस को इंटरनेट में ले जाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेब hosting. So what is web hosting? It is the process to keep the website or web pages over internet. Now web pages and its type. Web pages तो बोले web page is a part of a website, और इसका टाइप्स हम लोग डिस्कस कर ही लिए इसके पहले, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज क्या बोले? जिसका कंटेंट्स हम लोग का जो है वो क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, और डायनामिक वेब पेज जिसका कंटेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है और वो स्क्रिप्ट से बना हुआ रहता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट ये सब से बना हुआ रहता है। स्टैटिक वेब पेज जैसे हम लोग स्कूल का वेबसाइट्स ये सब, और डायनेमिक वेब पेज जैसे शेयर मार्केट्स ये सब। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज द ईमेल एंड इट्स प्रोटोकॉल्स। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ईमेल। So we know that email is what? Email stands for electronic mail. Electronic mail. It is the most common method of sending the official messages. मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर हमको कोई मैसेज को सेंड करना है तो सबसे कॉमन मेथड है ईमेल टू सेंड मैसेजेस ऑफिशियली। वी यूज द ईमेल। क्यों? क्योंकि ईमेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सालों साल तक ये तुम्हारा मैसेज को सेव करके रख सकता है, डिलीट नहीं होता है। ओके, तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद अगर हमको कोई मैसेज को खोजना है तो हम लोग अपना ईमेल से खोज सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। तो इंटरनेट में बहुत सारा रूल्स यूज होता है, प्रोटोकॉल्स यूज होता है, जैसे IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3, अभी POP3 का वर्जन आ रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, and internet protocol, तो ये सब प्रोटोकॉल्स हम लोग का इंटरनेट में यूज होता है, मतलब ईमेल में यूज होता है, और इससे अगर एग्जाम में आएगा तो फुल फॉर्म ही आएगा, ठीक है। एंड इट सेल्फ डेफिनेटली ऑल देयर इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट में अगर मेल को मुझे एक्सेस करना है तो हम लोग इस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, अगर हम लोग मेल को सेंड करना है तो हम लोग इस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, अगर मेल स्टोर होता है कहीं पर तो इस प्रोटोकॉल का यूज होगा, अगर मेल से तुम कुछ अटैचमेंट को डाउनलोड कर रहे हो तो ये तुम्हारा FTP, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहा है तो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, TCP। नाउ लेट अस कम टू द VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये है क्या? ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोटोकॉल है जिसके कारण हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ चला सकते हैं, मतलब क्या, जितना भी वीडियो कॉल्स
हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में, वो इसका देन है, VoIP. It is used to send audio and video calls simultaneously. At same time. For these video calls in Google Meet, Zoom, Skype is possible. इसका मेन एडवांटेज क्या है कि हम लोग का एकदम कोई बिना कॉस्ट का हम किसी से वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, सेम प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे अगर गूगल मीट है तो गूगल मीट में ही बात होगा तुम्हारा, अगर जूम है तो जूम में ही बात होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में जरूर आता है, VVI टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत बार आता है। Chat is a very common topic, as we know that we are using the chats like instant messaging, instant messengers, okay, Snapchats. These all chat softwares we are using. These are the online and the offline and the real-time softwares which are using the communication between the receivers and the senders. Internet messaging, IM, okay, internet messengers like real-time chat. These all comes in the chatting softwares. So here our chapter ends, okay, and yes, here our chapter ends. Now, internet of ill using the internet, that all comes in the societal impact of IT. There we will deal, and here our chapter ends in the network.